Hello students, welcome back for the session of Career Ki Baatein by Study Hub. This is Aman Bhatia and I'm explaining you each and every small big thing for 10 standard appeared students, what to take in 11th and 12th so that you can make a good career for yourself. Today we are going to talk about in session number 6 regarding careers in science. So when I talk about careers in science, I'm talking about the students who have taken 11-12 science after 10 standard. Now, when we talk about after 10 standard and we want to go for 11-12 science, so it is just not about discussing the various careers, but also we have to do a little bit of planning कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, तो उसके लिए मैं कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करूं या फिर उस ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा। इस तो पहले हम आज बात करेंगे ग्रुप कौन सा सेलेक्ट किया जाए, फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट किया जाए और उसके बाद उन सब्जेक्ट सिलेक्शंस के ग्रुप के ऊपर हम बात करेंगे रिस्पेक्टिव करियर्स की। तो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा एज कंपेयर टू द करियर्स इन आर्ट्स, or if I talk about the video of the careers in commerce. Okay, I hope you have seen all the videos by now to get the complete end-to-end information. Don't just jump to a video and see half of the information because it may mislead you, okay, in understanding it properly. So anyway, let us quickly begin with careers in science. Before we start, we first talk about the group selection, as I said. So what are the groups here, guys? The groups are PCM, PCMB and PCB. So you can either go with this group, 4 subject group, or again with the 3 of PCB. Okay, now let us see, if you go with PCM group, what are the important subjects in PCM group? So one of the options you get, of course, in which PCM becomes compulsory, that is physics, chemistry, math. English as a first language is compulsory. EVS as environmental science for 50 marks is compulsory. इसका internal exam होता है, board में written exam नहीं होता है. So total, okay, if you see, it is 650 marks. Now here you see 5 and 6, I have written bifocal. Bifocal stands for one subject in place of 2. So it gives you 100 plus 100, that is 200 marks. There are many subjects like computer science, electronics, and scooter motor mechanics, etc. in this. So if you go for, let us say, CS, you can go with CS and CS1 and CS2. 2 exams will happen of 100 marks each. Okay, and that's how your 650 marks will be completed, guys. Option number 2, a lot of students don't get bifocal because of the marks. Okay, so yes, PCM is, you know, a course which a lot of students want to take, especially those who want to get into the technical sides. तो कभी कभी बाइफोकल नहीं मिलता है। अब बाइफोकल नहीं मिलेगा तो हम उसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, तो फिर हमें या तो सेकंड लैंग्वेज लेनी पड़ेगी और सेकंड लैंग्वेज की जगह पर हम आईटी ले सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। और लास्ट में हम ले सकते हैं साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी में से कोई एक। अब ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हम कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में उतनी सीट है या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये 2 ऑप्शंस हैं और पीसीएम के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रिफर्ड अगर हम बात करें तो ये वाला ग्रुप जो है वो प्रिफर्ड हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने दूंगा अगर अभी नहीं भी लेना है तो ये पीसीएम के बच्चों के लिए हो जाता है। पीसीबी में उसी तरह अगर मैं मैथ्स को हटा के बायो कंपलसरी कर दूं, मैथ्स नहीं है, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट रेप्लिका है उन्हीं दोनों ऑप्शंस का। ठीक है, बट इसमें जो है वो बच्चे बाइफोकल कम प्रेफर करते हैं और ये वाला ग्रुप जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जिसमें डेफिनेटली इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब यहां पर बच्चे ज्यादा करके साइकोलॉजी लेना प्रेफर करते हैं, बट अदरवाइज कई बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी भी लेते हैं। 6th में ज्यादा बच्चे आईटी लेते हैं, बट कुछ बच्चे जो हैं वो सेकंड लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जैसे मराठी हो गया या फिर हिंदी हो गया या कोई एनी अदर लैंग्वेज, इट कैन बी अ फॉरेन लैंग्वेज डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज टू कॉलेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईवीएस तो सबको करना ही है गाइस। इसी तरह अगर हम पीसीएमबी की बात करें तो पीसीएमबी में भी 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब इसमें पीसीएमबी चारों कंपलसरी है, इंग्लिश और ईवीएस वैसे ही कंपलसरी, तो सिर्फ सेकंड लैंग्वेज जो है वो ऑप्शनल हो जाता है। या तो आप कोई फॉरेन लैंग्वेज ले लें सेकंड लैंग्वेज की जगह पर, या तो फिर आप हिंदी ले लें, मराठी ले लें, या तो फिर इन सब की जगह पर आप ले लें आईटी। इसमें भी जो प्रेफरेंस देखी गई है बच्चों की वो हो जाता है ये वाला, जिसमें इंग्लिश के साथ आईटी ले लेते हैं बच्चे और पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट रखते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप ये बोलो कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा सब्जेक्ट या ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन होता है वो होता है इसी ग्रुप का, क्योंकि जो पीसीएम ग्रुप है उसमें बायो ड्रॉप आउट करना है। बायो किसी टेक्निकल एस्पेक्ट में लगता है ना, जैसे अगर जेनेटिक्स में आगे जाके हमको जेनेटिक्स में इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन जेनेटिक्स में या तो फिर बायोटेक पढ़ना है तो उसमें बायो भी लगेगा, मैथ भी लगेगा। ठीक है, या फिर अगर हम मैथ ड्रॉप आउट कर दें तो हमें ऐसा लगता है कि हम स्टक हो गए हैं सिर्फ मेडिकल, पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्सेज करने में। तो इसीलिए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत सेफ खेलना चाहते हैं और वो पीसीएमबी ले लेते हैं, और पीसीएमबी में भी सेकंड लैंग्वेज जगह वो आईटी ले लेते हैं, तो पीसीएमबी आईटी बोला जाता है उसको। तो सबसे ज्यादा जो है वो ये ऑप्शन प्रेफर करते हैं बच्चे। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, पीसीएम में ये है, पीसीबी के लिए ये, और जो सबसे ज्यादा चाहिए था वो है पीसीएमबी ग्रुप। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आपको सारे ग्रुप और सब्जेक्ट सिलेक्शंस यहां पर एक साथ दिख जाते हैं। तो आई होप वी आर क्लियर सो फार। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो पीसीएम लेते हैं, तो उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, पीसीएम में कैसे हम आगे की बात कर सकते हैं। देखो, पीसीएम में
जो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 से 2 साल में जो कोर्स किया जा सकता है, ठीक है, वो है फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा। इसके आगे अगर आपको अपना करियर सेट करना है इसी फील्ड में, तो आप फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग, इन सब में अपना करियर बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास और भी कुछ कोर्सेज हैं जो 3 साल के होते हैं, ठीक है, जैसे कि एनडीए का प्रोग्राम है जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पुलिस डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, यू कैन गो फॉर various graduation programs which are BCS, BCA, normal BSc, ठीक है, BCS, BCA के बारे में पहले भी बात की है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर स्टडीज एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें आपको और आगे जाके हायर स्टडी करनी है तो आप एमसीए कर सकते हैं, जिसमें आपको और 3 साल लग जाते हैं। अगर एमसीए नहीं करना है तो आप एमसीएम, एमसीएस, एमबीए या फिर एमएससी के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप कैरी ऑन कर सकते हैं, जिसमें 2-2 साल लगते हैं इनमें से कोई भी मास्टर्स का प्रोग्राम करने के लिए। तो आई होप ये 2 चीजें हमें समझ में आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे कोर्सेज जो 3 से 4 साल में हो जाते हैं, जैसे कि बात की जाए होटल मैनेजमेंट की जो डिग्री है उसकी बात की जाए तो इसको 3 से 4 साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में। अब हम आ जाते हैं 4 साल की डिग्रीज के ऊपर, जिसमें हमारी 2 बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर फील्ड्स आ जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं बीई, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या तो फिर बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक की डिग्री जो है वो आईआईटीज में बच्चे जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब चाहे हम बीई करें या बीटेक करें, टेक्निकली दोनों एक ही तरह के 2 कोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे जो हमें आगे जाके करना है वो हम दोनों फील्ड्स को आगे जाके कर सकते हैं। अगर हम बात करें फर्क क्या है, मोटा मोटा फर्क क्या है, तो ये थोड़ा थियोरेटिकल है, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज्यादा देता है, ठीक है। अब चाहे जैसे मैंने बताया बीई किया हो या बीटेक किया हो, आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, तो आगे जाके वेरियस कोर्सेज है, जैसे हम आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस का एग्जाम देने के बाद हम पब्लिक सेक्टर में जॉब कर सकते हैं या तो फिर हम रेलवे का जॉब कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 साल और देकर हम मर्चेंट नेवी का कोर्स कर सकते हैं और मरीन इंजीनियरिंग ना आगे जाके हम कर सकते हैं और मरीन इंजीनियर बन सकते हैं मर्चेंट नेवी का कोर्स करने के बाद। उसके अलावा हम गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। अलावा हम डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, जिसमें नेवी और एयरफोर्स आता है, ठीक है। इसके अलावा हम एमपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, जैसे हमने बात की ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के बच्चे भी एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं। वैसे ही साइंस के जो पीसीएम के बच्चे हैं वो भी देखा गया, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद एमपीएससी और यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब रखते हैं, तो वो ये एग्जाम्स भी दे सकते हैं। 2 साल के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम एमई की बात करें, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये इंडिया में किया जाता है, या तो फिर एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में आपको बाहर जाके यूएस वगैरह में पढ़ना है तो मास्टर ऑफ साइंस आप कर सकते हैं, एमएस बोला जाता है जिसको, ठीक है। एमटेक का प्रोग्राम आप कर सकते हैं, भले ही आप यहाँ पे शायद आईआईटी में नहीं कर पाए बीटेक का प्रोग्राम, सो आप बीई करने के बाद फिर आप एमटेक में भी आईआईटी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एमबीए भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका एक मतलब एक टारगेटेड कॉलेज यहाँ पे देखा गया जो एमबीए के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं, विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एमबीए कॉलेजेस, जिसका नाम है आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के बाद जो है वो आईआईएम से एमबीए भी करते हैं, ठीक है। एमई जो बच्चे करते हैं वो एमई करने के बाद तो इंजीनियरिंग का जॉब या तो फिर टीचर बन जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियर के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 साल का कोर्स, तो 5 साल के कोर्स में आपके आर्किटेक्चरल रिलेटेड कोर्सेज आ जाते हैं, जैसे बी प्लानिंग, बी डिजाइनिंग या तो फिर बी आर्क का कोर्स आ जाता है, ठीक है। इनको करने के लिए 5 साल हो गए, फिर बी आर्क के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर लैंडस्केप डिजाइनिंग में। तो आई होप कि ये सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको समझ में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये ऑल द कोर्सेज आर मेंशन्ड, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, ओके। Now I hope you have done that already. So let us quickly talk about PCB students. Now when we talk about PCB students, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे यार पीसीबी लिया तो फिर हमें क्या करना है, हमें तो करना पड़ेगा मेडिकल डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं साइंस नहीं लेते हैं या तो फिर पीसीबी नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है गाइस, बहुत सारे कोर्सेज जो आप पीसीबी के बाद कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट पीसीबी के बाद बेसिक ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में बीएससी इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग, बीएससी इन होम साइंस, बीएससी इन वेरियस अदर फील्ड्स, जिसमें पे पीसीबी का ग्रुप लिया तो बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, बीएससी इन केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम की, तो ये बीएससी नर्सिंग करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, वेरएज अगर डिप्लोमा करना है तो 2 साल में हो जाता है। बीएससी होम साइंस या अन्य जो बीएससी के प्रोग्राम्स हैं उसको करने के लिए आपको लगभग 3 साल लग जाते हैं। इसके बाद आप आगे जाके अपनी फर्दर एजुकेशन कर सकते हैं या तो एमएससी में, ठीक है, या तो फिर एमएससी इन बायोटेक। अब एमएससी इन बायोटेक करने का मतलब यह है कि आगे जाके एमएससी इन बायोटेक करने के बाद आप कर सकते हैं एमटेक इन बायोटेक। बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं आप, एमटेक इन बायोटेक। अगर हम बात करें टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम की बात किया है, यहाँ पे हमें लग जाता है 2 साल एमएससी करने के लिए, कोई भी एमएससी करना है, और 1 साल और एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए लग जाता है गाइस। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ मेजर की, मेडिकल कोर्सेज की, राइट। अब अगर मेडिकल कोर्सेज की बात किया तो मेडिकल कोर्सेज में क्या क्या है, तो गाइस मेडिकल कोर्सेज में आप कर सकते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस।
और भी कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि आयुष के कुछ कोर्सेज हैं, नेचुरल थेरेपी है, लेकिन वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है क्योंकि जो मेजर बच्चे जो सीख करते हैं 11 12 पीसीबी के बाद जिनको डॉक्टर बनना है वो ये कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है। और इनको करने में लगभग 5 से 5.5 साल लग जाते हैं, जिसमें आपका 1 ईयर का कंपलसरी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, जिसे रोटेटिंग इंटर्नशिप भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एमबीबीएस के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन फर्दर कंटिन्यू योर हायर स्टडीज इन एमडी और एमएस, दैट इज मास्टर्स इन मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी, ठीक है। या तो फिर आप बहुत सारे स्पेशल डिप्लोमा कर सकते हैं, एमडी एमएस के बाद आप सुपर स्पेशलिटी भी कर सकते हैं, ठीक है, वो और आगे की बात है। बट फिलहाल अगर एमडी एमएस की बात की जाए तो एमडी एमएस करने के लिए यहाँ पे 3 साल लगते हैं और ये स्पेशल डिप्लोमा करने के लिए 2 साल। जिन बच्चों ने बीडीएस कंप्लीट किया है वो अपनी हायर स्टडीज कर सकते हैं, एमडीएस में मास्टर्स कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे मिलते हैं और इसे करने के लिए भी लगते हैं 2 साल। इसके अलावा देखा गया है जो होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन बच्चे करते हैं वो या तो फिर एमडी के लिए पढ़ाई करते हैं और कई बच्चे एमएससी भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फर्दर अप्रोच ऑफ स्टडीज। एमएससी करते हैं हेल्थ साइंस में, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू देम एज वेल। तो ये कुछ हो गया हमारे मेडिकल कोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज पे। पैरामेडिकल कोर्सेज भी बहुत डिमांड में रहते हैं स्टूडेंट्स। पैरामेडिकल कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपके सामने, यहाँ पे कर देता हूँ। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी विच इज ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसमें 2 हैं, डिप्लोमा भी है और बैचलर्स का भी डिग्री है, डीएमएलटी एंड बीएमएलटी रिस्पेक्टिवली, बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जैसे अगर लैब टेक्नीशियन वगैरह बनना है तो उसके लिए भी वो पैरामेडिकल कोर्सेज में आ जाता है, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसको ओटीटी भी बोला जाता है, या तो फिर हम कर सकते हैं बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, या तो फिर बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। गाइस ये सब कुछ जो है वो आ जाता है पैरामेडिकल कोर्सेज में। गाइस ये भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चों को प्रेफर्ड रहते हैं। अब इन्हें करने में डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हैं, उसके हिसाब से 3 से 4.5 साल आपको लगते हैं, ठीक है, इन कोर्सेज को करने के लिए। तो आई होप गाइस तुम्हें यह भी समझ में आया कि पीसीबी के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट तुम ले लो, ठीक है। और तुम बोलोगे सर आपने यहां पर एक बहुत कोर चीज मिस कर दी है, व्हिच इज फार्मेसी। बेटा फार्मेसी जो है वो भी बच्चे कर सकते हैं पीसीबी के बाद, बट मैंने यहां पे उसको रखा इसलिए नहीं क्योंकि वो मैंने पीसीएमबी में रखा है। अब ऐसा क्यों है मैं बताता हूं, लेट मी कम टू पीसीएमबी। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। डेफिनेटली पीसीबी के बच्चे फार्मेसी भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब पीसीएमबी की अगर हम बात करें तो पीसीएमबी के बच्चे जो हैं डेफिनेटली वो सारे जो कोर्सेज पीसीएम के बच्चे कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, सारे कोर्सेज जो पीसीबी के बच्चे कर सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पीसीएमबी के बच्चे प्रेफर करते हैं, ठीक है, और वो क्या है, उसमें है बीफार्म। अब बीफार्म मैंने पीसीएमबी में इसलिए रखा क्योंकि फार्मेसी में बायो और मैथ्स कंपलसरी नहीं है, वहां पे कंपलसरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री। यस गाइस, तो जो बच्चे सीईटी देते हैं बीफार्म करने के लिए वो आमतौर पे पीसीएमबी लेके आगे पढ़ते हैं और वो पीसीएम और पीसीबी पूरा पेपर लिखते हैं पीसीएमबी का, और दोनों ग्रुप्स के जो मार्क्स होते हैं वो लेते हैं और जिसमें ज्यादा मार्क्स आया है उस ग्रुप को लेकर आगे एडमिशन करते हैं। नो डाउट मेडिकल के स्टूडेंट्स भी फार्मेसी में जो इंटरेस्टेड हैं वो एज प्लान बी रखते ही हैं, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो पीसीएमबी के ऐसे होते हैं जो आगे जाके फार्मेसी करते हैं। 3 साल लग जाते हैं फार्मेसी करने में, उसके बाद आप आगे जाके एमबीए का प्रोग्राम या तो फिर एमफार्म भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लग जाते हैं और 2 साल स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, तो इसके अलावा किया जा सकता है 4 साल के कुछ कोर्सेज जैसे बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीटेक इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज बीएससी इन एग्रीकल्चर, दिस इज बीटेक इन एग्रीकल्चर। अब अगर आपने कोई भी इनमें से ग्रेजुएशन प्रोग्राम खत्म किया, कोई भी, ठीक है, तो आप इन किसी भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद मास्टर्स के लिए एमबीए कर सकते हैं। नो डाउट बहुत सारे बच्चे एमबीए करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन्स में अपने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद। बट एमबीए के अलावा अगर आपने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है, आप अपना एमएससी कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, या तो फिर रिस्पेक्टिव फील्ड में आप अपना मास्टर कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे एमटेक इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर एमएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। गाइस ये तो सब हो गई हमारी बातें पीसीएमबी की, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप पीसीएम के स्टूडेंट्स, पीसीबी के स्टूडेंट्स और पीसीएमबी के स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनको, वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी सेशन है एज कंपेयर टू कॉमर्स एंड आर्ट्स, बिकॉज एज आई सेड देयर वाज ग्रुप सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड देन ऑल ऑफ दिस। गाइस इसके अलावा जो साइंस आपको देता है वो और कोई नहीं देता है, दैट इज after 11-12 science, if you not feel comfortable and you don't find yourself fit in science, you can definitely switch to commerce or humanities for your higher education. Okay, so if you are confused whether you have to take science, commerce or arts, if you are confused, go with science, and in that also go with PCMB group. I would say PCMB give you wings. PCMB IT ले लो, तुम्हें टेक्निकल साइड भी थोड़ा पढ़ने को मिलेगा, मेडिकल साइड भी थोड़ा एक्सप्लोर करो, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। ये सब करने के बाद जब श्योर हो जाओ कि भाई साइंस मेरे बस की बात नहीं है, डेफिनेटली साइंस तुम्हें बोलता है
जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। तुम्हें कॉमर्स लेना है, आगे जाके एमबीए करना है, बीबीए करना है, यहां तक कि जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स कोर्सेज हैं जैसे सीए और सीएस, वो भी आप साइंस लेके आगे कर सकते हैं, उसके भी तरीके हैं। ठीक है, अब सारी बातें मैं एक वीडियो में तो बता नहीं सकता। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दीज सेशंस। दिस इज द सेकंड लास्ट सेशन गाइज, एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग देम, subscribe to the channel if you have not already done it. Share it with as many people as possible. I need to complete maximum subscribers really quick, as this is a new channel. Looking forward for your support, at the same time helping each and everybody in best of my capacity. Guys, do comment if you want me to make a video on any specific thing in aspect of the career, or if you want to know about the relative entrance exam for a specific higher studies, whatever I have mentioned here, I would love to do that. Guys, before I sign off for the day, I would like to thank you all for listening me out today. And with that, waving you a goodbye for this session. This is Aman Bhatia. Take care all of you. I'll see you soon in another video.